Agent charges 10% commission and plus 2% del credit. Question number 14 from 1.1. So commission is 10% regular commission plus del credit is 2%. Unless otherwise mentioned, this 2% should also be charged on the total sales. Total sales are 37,200 and total commission is 12%. So 37,200 पे 12% commission. $37,200 पे 12% कमीशन हो गया 4,464. This is the total earnings. (15th) A wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article whose marked price is 1,600? अब ये ना ऐड नहीं करने एक दूसरे में. मार्क्ड प्राइस कितना है 1,600. उस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलता है 10%. कैश डिस्काउंट 5%. सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट इज 25%. तो आप इसको टोटल मिला के 30% मत निकालो, वैसे नहीं होता. So trade discount will be 25% into 1,600. अब देखो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 25 into 16. अब ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं. तो 25 into 10 plus 25 into 6 ऐसे किया करो. So 25 into 10 is 250 plus 25 into 6 is 150. This will be 400. टोटल ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका 400. तो इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई 1,600 minus 400, that is 1,200 is invoice price. Now cash discount is 5% on 1,200. So 5 upon 100 into 1,200, that will be 60 rupees का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट. तो नेट प्राइस क्या हो गई आपकी ये रफ में करते हैं, आपको ये फेयर में नहीं करना एग्जाम में. तो नेट प्राइस विल बी इनवॉइस प्राइस minus cash discount. Invoice price is 1,200 minus cash discount is 60, that is 1,140. This is the net price of the article whose marked price is 1,600. You will write down, therefore net price is 1,140 rupees. Question number 14. These are actually some extra sums from Target Publications. मैं बुक इसलिए बताती हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं किसी को लगना चाहिए कि पता नहीं कहाँ के प्रिंट आउट दे दिया हमको. ये टारगेट की जो बुक है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सम्स होते हैं, इसलिए वो हम लोग करते हैं. मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में टेक्स्ट बुक के ही सम्स आते हैं आज तक जितना भी देखा गया है, बट एक्स्ट्रा सम्स आपकी प्रैक्टिस और आपकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ा देता है. That's why we do extra. रिलायबल भी मिलता होगा शायद मैथ्स का, मुझे नहीं पता है, लेकिन रिलायबल में कोई एक्स्ट्रा सम्स नहीं थे पहले. टारगेट पब्लिकेशन की बुक है, उससे ये एक्स्ट्रा सम्स है. इसमें ये जो प्लस वाले होते हैं ना, these are all solved examples. ये आपके टेक्स्ट बुक में solved examples है. Now the 14th one. A wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. Find the list price of an article if it was sold for net amount of 1,140.
Now this is totally based on the concept of invoice price is equals to list price minus trade discount. Net price is equals to invoice price minus cash discount. अब हमको ये पता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज 25% and cash discount is 5% and net price is 1140. Now we have to find out the marked or the list price. So I will say let list price. अब यहाँ पे ना दो तरीके, एक तो आप उसको x ले लो या आप इसको 100 ले लो. 100 इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है. x लिया तो ये 25x अपॉन 100, x माइनस 25x अपॉन 100, फिर उस पे 5% ऐसे हो जाता है. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? 25%, it will be minus 25, so 75. अब इस पे कैश डिस्काउंट क्या होगा? 5%, तो 75 पे 5% का कैश डिस्काउंट 3.75. This is your net price. If I take list price to be 100, then 71.25 is my net price. Now, I will say when list price was 100, net price was 71.25. Now, when list price, net price is 1140, what is your list price? Cross multiply 1140 into 100 divided by 71.25. It is 1600. So the list price is 1600. ये हमारे एक्सरसाइज में जो 15 सम है उसका एग्जैक्टली अपोजिट है. वहां पे 1600 लिस्ट प्राइस दिया था, ट्रेड और कैश डिस्काउंट दे दिया था और हमको नेट प्राइस मिल गया था. Then the next sum. जो डिफिकल्टी बोली है आप लोगों ने. The next is 15. 14 हो गया, 15. The price of TV set is 17,000. An agent charges 3% and earns 25,500. Find the number of TV sets sold by him. Price of one TV set is 17,000. ये ऐसा सम हम लोगों ने पहले ही किया है, बस इसको थोड़ा सा बदल दिया उन्होंने. एजेंट कमीशन कितना है? 3%. तो 3% of 17,000, that will be 510. लेकिन टोटल कमीशन कितना है उसका? टोटल कमीशन ऑफ एजेंट is 25,500. So number of TV sets is 25,500 divided by 510. Total sets are 50.
ये एक तरीका हुआ. Is there any other method? Definitely. You can take number of TV sets, number of sets X. So total sales कितना हो जाएगा? 17,000X. So commission will be 3% on 17,000X. So it will be 3 into 17,000X upon 100 is equals to 25,500. That is 510X is 25,500. So X will become 50. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. इस तरह का सम एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन इसी तरह का सम आपके एक्सरसाइज में है. Sum. An article is marked at 50 rupees 1,500. A trader allows a discount of 3% and still gains 20% on cost. Find the cost price. Cost, no, selling price क्या है article की? Selling price is, no, this is not even selling price. This is marked price. Marked price is 1,500. Traders discount 3% on 1,500. That will be 3 upon 100 into 1,500. That is 45. This is trader discount. So invoice price will be 1,500 minus 45. $1,455. This is your invoice price. But even after selling at this price, this is invoice price, at the same time it is a selling price. But even after selling at this price, the profit is 20% on cost. So I'll say let cost be X. तो profit क्या होगा? 20X upon 100. अगर cost X है तो profit क्या होगा? 20X, that is X by 5. So selling price क्या होगी? X plus X by 5. That is 6X by 5. This is the selling price. अब आप सेल कर रहे हो 1455 पे, तो 6X by 5 is equals to 1455. तो X क्या होगा? 1455 into 5 whole thing upon 6. That is 1212.5. This is your cost price. Cost price पे आपने अगर 20% लगा दिया, तो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आती है 1455. Now let us go to the next one. ये जो इधर दिया है ना, ये जुलाई 17, जुलाई 18, ये वो पेपर में आके गए हैं. Now an agent was paid 58,500 as commission on sale of computers at the rate of 12.5%. If the price of each computer is 18,000, how much computer does he sell? Okay, एक कंप्यूटर की प्राइस क्या है? Price per computer is 18,000 and agent commission is 12.5%.
सो कमीशन पर कंप्यूटर कितना मिलेगा? 12.5 अपॉन 100 इंटू 18,000। वन 180 into 12.5, that will be 2250. This is commission per computer. Total commission कितना है? 58,500. Therefore, number of computers sold will be 58,500 total commission upon 2250 commission per computer. That is 26 computers are sold. ये वही है जो हम लोगों ने पहले किया था ना 15 सम में, ये एक्स्ट्रा सम्स के 15 में जैसे सॉल्व किया था वैसे ही है ये मार्च 20 में आके गया था। मार्च 20 के बाद अभी तक एग्जाम हुई नहीं है, ये साल तो एग्जाम कैंसिल हो गई थी 21 में, इसलिए वो पेपर अवेलेबल नहीं। ये चैप्टर का नाम है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन और ब्रोकरेज का तो हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ द सेकंड एक्सरसाइज इज अबाउट डिस्काउंट। Before we do the exercise, we should learn about certain terminologies here. And the first part in this terminology is present worth. This is worth of the amount currently. ये बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आज मैंने 1,000 रुपए के गुड्स खरीदे, थाउजेंड के गुड्स मैंने आज खरीदे। अगर मैंने आज के आज ही पैसा दे दिया तो आई विल हैव टू पे 1,000 रुपीज। लेकिन इफ आई टेक क्रेडिट of 2 months, then I have to pay 1,300. तो अगर मैंने आज के आज ही 1,000 रुपए पे कर दिए, क्योंकि गुड्स की आज की कीमत क्या है 1,000 रुपए, अगर मैंने आज ही पेमेंट की तो 1,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। एंड दिस 1,000 रुपीज इज माय प्रेजेंट वर्थ, द वर्थ ऑफ द अमाउंट करंटली। लेकिन अगर मैंने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड ले लिया तो मुझे 1,300 रुपए देने पड़ेंगे। ये 1,300 हो गया सम ड्यू, और ये जो इनके बीच का डिफरेंस है 300 रुपए का, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट। अब ये ट्रू डिस्काउंट क्या लफड़ा होता है? देखो, पैसे की जो कीमत है ना वो दिन ब दिन कम होती जाती है। 1 रुपए की कीमत जो है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी, और इसीलिए वही चीज खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे आपने शायद बचपन में एक पेंसिल जो है नटराज की, वो शायद 1 रुपए में खरीदी होगी, और मैंने अपने बचपन में 50 पैसे में एक नटराज की पेंसिल खरीदी थी, और आज एक नटराज की पेंसिल की कीमत है 5 रुपए। तो हम लोग ऐसे पकड़ के चलते हैं कि सपोज ये है वो नटराज की पेंसिल, इसकी कीमत क्या है 5 रुपए आज के हिसाब से, और कुछ सालों पहले इसी पेंसिल की कीमत क्या थी 1 रुपया।
अगर मैं आज 1 रुपया लेके जाऊं इसी नटराज के पेंसिल को खरीदने के लिए, तो मुझे ये पूरी पेंसिल नहीं मिलेगी। इमेजिन कि ये डिविजिबल है, तो मुझे सिर्फ 1/5 पेंसिल ही मिलेगी। तो कुछ सालों पहले 1 रुपए में मैं इतनी बड़ी पेंसिल खरीद सकती थी, लेकिन अब कुछ साल बाद मैं 1 रुपए में बस इतनी सी ही खरीद पाती हूँ। तो वही चीज खरीदने के लिए जब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो उस बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कभी कभी डिस्काउंट या इंटरेस्ट कह देते हैं। और आप बोलोगे एक एक कॉमन नोटेशन है इसका, लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। Definitely inflation is due to many reasons. I'm not saying this is the only reason, but one of the important reason for inflation is also time value of the money. And what does time value of the money says? That the value of 1 rupee goes on decreasing as the time passes, and thus for getting the same amount, to acquire the same value, you have to pay more price. तो आज जो 1000 रुपए का गुड्स है वो 2 महीने बाद शायद 1300 रुपए हो जाएंगे। तो आपने अगर 2 महीने बाद पैसे पे किए तो आपको 1300 रुपए पे करने पड़ेंगे। और ये 300 क्या होगा? इट विल बी ट्रू डिस्काउंट। जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से आपको उस पे इंटरेस्ट लगेगा, एंड आप उस हिसाब से ऐड करके कुछ दिनों बाद ये पैसे दे दोगे। So let us understand the concepts of present, sum due and true discount. Present worth is the amount or the value of the money currently. Sum due is the value of the money after n number of period at our rate of interest or discount. And true discount is basically a simple interest on the present worth. So there are some sums that we should know. Sorry, some formulas that we should know very well. Is sum discount, sum due is present worth plus true discount. एकदम सिंपल पकड़ लो। अगर आपने कहीं पे जाके कुछ चीज खरीदी तो वो लोग क्या बोलते वक्त वो बोलते हैं अरे प्राइस तो 1300 है, तो आप बोलोगे नहीं भैया कुछ कर लो ना, कम ज्यादा कुछ ऐसा। तो आपने तुरंत पैसे दिए तो वो बोलेगा हाँ चलो 1000 में दे देता हूँ। अगर आपने बोला नहीं नहीं मैं क्रेडिट मेरे को क्रेडिट चाहिए, मैं उधारी पे लेके जाऊंगा, तो वो आपको 1300 रुपए में ही लगाएगा। अब ये बात हमको पता नहीं चलती क्योंकि एमआरपी 1300 लगाई होती है। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल के लिए आपको दे दिया, बट टू पुट इट मोर एक्यूरेटली, इफ आज मैंने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं और वो 1000 रुपए मैं आज नहीं देने वाली हूँ, आपको 2 महीने के बाद देने वाली हूँ, तो 1000 रुपए हो गया प्रेजेंट वर्थ। 1300 मैं जो 2 महीने के बाद आपको दूंगी, दैट इज 1300 is sum due, and 300, that is difference between them, is the true discount. This is the rate at which the money goes on decreasing. So 1000 rupees of today becomes 1300 tomorrow. Sum due is present worth plus true discount. True discount is present worth into n into r upon 100, that is simple interest on present worth. Banker true discount is also given as sum due minus present worth. Then I'll give you some more formulas, but we'll talk about these formulas tomorrow. BD is face value into n into r upon 100.
These are all the formulas that you should know. Now we'll take an example and discuss about this for all these formulas in tomorrow's lecture. I'll give you an example and explain you each and every formula.